السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج دو بہت امپارٹنٹ ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو ہے نیب آرڈیننس کہ جو نیب چیئرمین کی تقرری کا جو اختیار سپریم جوڈیشل کونسل سے، کونسل ہوتی ہے نا، کمیشن تو نہیں نا، سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کر صدر مملکت کو دے دیا گیا ہے، اس پر خود حکومت کے اندر جو ہے اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کے لیے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اٹارنی جنرل نے بھی مخالفت کر دی ہے کہ صدر مملکت کو اختیار نہیں ہونا چاہیے چیئرمین نیب کو ہٹانے کا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے۔ دوسرا ایشو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حکومت نے پنگا لیا تھا۔ اعظم سواتی اور فواد چودھری نے جو الزامات لگائے تھے، سمجھ لیں گالم گلوچی کی تھی، تو اس کے یہ ایشو تھا ظاہر انتخابی اصلاحات کا، ای وی ایم کا۔ اب بابر امان صاحب گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کے پاس پہنچے تھے۔ حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے، اب حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو راضی کر لو اور اپوزیشن سے بھی بات کر لو، کیونکہ حکومت ظاہر جوائنٹ سیشن تو بلا ہی رہی ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ کیا واقعی حکومت اس میں سنجیدہ ہے؟ کیا واقعی حکومت اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا اپوزیشن ان پر ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن فواد چودھری اور اعظم سواتی کی گالیاں معاف کر دے گا، بس ختم ہو جائے گا معاملہ؟ اس پر صدیق ساجد صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ دونوں امپارٹنٹ ایشوز ہیں۔ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ صدیق صاحب، چیئرمین نیب کی تقرری اور نیب آرڈیننس سے شروع کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کے لیے بھی اطلاعات یہی آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اختلاف رکھا ہے کہ صدر کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر چوتھا ترمیمی آرڈیننس آئے گا نیب کا؟ بالکل آئے گا، لانا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرح تو صحیح یہ بات کرتے ہیں کہ جی نیب آزادانہ ادارہ ہے، شفاف احتساب کا ادارہ ہے، اور جی بڑی ہم جو احتساب کر رہے ہیں وہ صاف اور شفاف ہے، اتنی ریکوری ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ اس کا جو سربراہ ہے، جو چیئرمین ہے، اس کو آپ اپنے متحد کر رہے ہیں، اور اپنے متحد کر کے بھی اس کے جو بھی کارنامے ہیں وہ بھی آپ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا ہے کہ چیئرمین نیب کو آپ این آر او دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو تیسرا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، اس کے اوپر اٹارنی جنرل کے ریزرویشنز بالکل ہیں میرے ذرائع کے مطابق، اور آپ نے بھی اس کا اشارہ کر دیا، اور اب حکومت نے ادھر ادھر سے یہ باتیں کروانا شروع کر دی ہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہی رہے گا، سپریم جوڈیشل کونسل کی جو سفارشات ہوں گی وہ صدر کے پاس جائیں گی۔ اچھا، وہ تو پہلے ہی ایسا ہوتا ہے، نوٹیفائی تو صدر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ نوٹیفائی اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی ہوگی کسی جج کے خلاف، تو جج کو ہٹانے کا اختیار تو پھر اسی کا ہے نا، جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ اب یہ جو آرڈیننس آیا تھا، اس میں تو انہوں نے براہ راست سپریم جوڈیشل کونسل کو فارغ کر کے سیدھا صدر کو سوابدیدی اختیار دے دیا۔ اب صدر کو سوابدیدی اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ادارہ کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر ایک ہتھوڑا رکھ دیا، تلوار لٹکا دی، ٹھیک ہے۔ وہ اب تلوار جو ہے اب یہ صحیح شنید ہے کہ اب حکومت نے یہ کر تو دیا، لیکن اب ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے اس کو سنبھالنا، کیونکہ اپوزیشن کی بھی تنقید ہو رہی ہے۔ شاید خاقان عباسی تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ہی بار نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دو کہ اس میں مسلم لیگ نون کے خلاف کاروائیاں ہوں گی، باقی سارے جو ہے وہ اے ٹو زی۔ یہ ویسے ہونا یہی چاہیے تھا، شاید خاقان عباسی ٹھیک کرے۔ ہاں اچھا، نہیں تو یہ ابھی دوبارہ یعنی چوتھی مرتبہ لائیں گے، اس میں کچھ اور بھی پھر ترامیم ڈال دیں گے؟ ان کا ایکچولی مجھے لگ رہا ہے کچھ ان کا اداروں کو تباہ کرنے کا، اداروں کو برباد کرنے کا، اداروں کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کا ان کا منصوبہ ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے جمہوریت کے لبادے میں سب سے بڑے یہ جمہوریت کے دشمن ہیں، اداروں کی تباہی کے یہ فاشسٹ حکمران۔ میں یہ کہتا، لیکن یہ میں کہتا یہ ہوں قمر زمان قاہرہ کہہ رہے تھے کہ قبر زبان کہہ سکتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن والی کہ بابر اعوان کو منت اللہ کرنے بھیجا،
ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि देखिए सर, दो इश्यूज हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। एक, इलेक्शन कमीशन के रिजर्वेशन है, तहफुजात हैं ईवीएम पे और इंतखाबी इस्लाहात के कवानीन पर। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का मसला है गालियां जो दी गई हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो केस अलग बन जाता है, और ये रिजर्वेशन अलग है। ये इनका कोई लिंक है ही नहीं कि ये अगर रिजर्वेशन इन्होंने दूर कर लिए तो इलेक्शन कमीशन कोई इनको माफ कर देगा गालियां या इल्जामात। नहीं करने भी नहीं चाहिए जी। देखें, इलेक्शन कमीशन के घर की लौंडी है क्या? अगर कोई इदारा पहली मर्तबा आपके सामने खड़ा हुआ है और आपके गैर कानूनी इक़दामात को वो तो बात कर रहा है उसके ऊपर, तो आप उसको क्या दबा लेंगे? ऐसी तो बात नहीं है। इस ऐसे इदारों के पीछे तो लोगों को, अवाम को, कौम को, सियासतदानों को खड़े होना चाहिए। और भाई आप ये जब तक उसकी मुलाकात नहीं हुई थी चेयरमैन नायब की वजीर आजम से, तो यही इमरान खान नायब को गालियां देता था, पता है आपको? इसके वो ऐसे ऐसे लेकर जैसे मुलाकात होती है, फिर एक वीडियो सामने आ गई सर से पाँव से लेकर चूमने तक की। वो वीडियो ऐसे उसके गले का तौक बनी है चेयरमैन साहब के कि अब वो हुकूमत वक्त जो है या मुख्तलिफ इदारे जब उससे जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। इसी वजह से उसको एक्सटेंशन दे दी है। लेकिन अब मेरी इतला ये है कि अगले हफ्ते सदर ममलिकत आरिफ अलवी नए चेयरमैन नायब की तकर्री के लिए भी मशावरत शुरू करने जा रहे हैं। और आज मैंने एक बड़े जुम्मेदार बंदे से पूछा तो उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत की जानब से एक जो ख़त है वो लिखा जाएगा वजीर आजम को, और वजीर आजम से नाम मांगे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वजीर आजम की जानब से 3 नाम आएंगे तो वो खत जो है 3 नामों के साथ वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भिजवा दिया जाएगा और कहा जाएगा वो सदर भेजेंगे कि ये 4 नाम वजीर आजम की जानब से आगे हैं, आप इसके ऊपर अपनी राय दें। या तो उन 3 नामों में से किसी एक नाम के ऊपर अपोजिशन लीडर इत्तेफाक कर लेगा, या अपने उनको बोलेगा जी ये मेरे 3 नाम हैं, मैं इन नामों वजीर आजम के नामों को नहीं मानता, ये मेरे नाम है, इसके ऊपर कंसिडरेशन करें। उसके बाद सदर ममलिकत जो है जब देखेंगे कि अपोजिशन लीडर ने तो इत्तेफाक नहीं किया वज़ीर आज़म के नामों के ऊपर, तो फिर वो मामला ये 6 के 6 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा देंगे और उसमें फिर पार्लिमानी कमेटी जो है वो फैसला करेगी। ये सुना है कि अगले हफ्ते से ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है और अगले हफ्ते लेटर जो है वो लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। तो ये जो चेयरमैन जावेद इकबाल को जो एक्सटेंशन और ये जब तक नया नहीं आता, ये जो प्लान था कि बड़े नहीं, ये प्लान ऐसा लग रहा था उन दिनों में जब ये ऑर्डिनेंस आया था कि इसको शायद लंबा खींचेंगे, 1.5 साल मुझे तक। लगता नहीं है कि अगर इस किस्म की कोई बात होती। देखिए ये जो अभी तो देखे ना, अभी तो अगर ये प्रोसेस सदर ममलिकत शुरू भी करते हैं शाकिर सोलंकी साहब, 2-3 महीने तो इसमें वैसे ही लग जाने खतो किताबत में। ठीक है, कि अगर इसका जवाब दे दिया और नाम आ गया, अगर पार्लिमानी कमेटी बननी है अभी, उसमें फिर सदर और वजीर स्पीकर और चेयरमैन सर नाम मांगेंगे, फिर वो कमेटी बनेगी, उसका इजलास होगा, उसका TOs बनेंगे, उसका चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। ये उस वक्त तक रहेगा। ये 2-3 महीने का प्रोसेस ये है। अभी देखिए उससे पहले वो नाम आना शुरू हो गया जी बिलाल अकबर का, कि उसको लगाया जा रहा है सऊदी अरब से सफीर के जो है इस वक्त, उसको लाया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है, वल्लाह आलम। लेकिन अभी तक जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लेटर लिखना है, वो हो सकता है उसका नाम वो दे दें। अच्छा, अपोजिशन के साथ जो इन्होंने बाबर अमान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, इलेक्शन कमीशन से भी मिल के आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ताउन का यकीन दिलाया है, फिर अपोजिशन को पेशकश की, ऑफर की है कि आए जी हम मुज़ाकरात करेंगे आपके साथ। तो ये अपोजिशन आपको लग रहा है कि इन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार होगी, या ये कोई सीरियस हैं अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने में? पहली बात यह है कि अपोजिशन के साथ बात करेगी नहीं। कल मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ तो हम नहीं बैठेंगे, हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। अब स्पीकर की ज़ेर सदारत वो पार्लिमानी कमेटी पर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है, लेकिन स्पीकर हुकूमत नहीं है, वो तो वो और दूसरा वो अफगानिस्तान पे है, वो अफगानिस्तान पे है। लेकिन ये जो इश्यूज हैं वो कह रहे हैं जी ये वो वाले इश्यूज हैं EVM का, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, ये समुद्र पार पाकिस्तानियों का इंतखाबी इस्लाहात का, जिसके ऊपर इस हुकूमत ने खुद हमें डच किया है, हमें धोखा दिया है, फ्रॉड किया है कि जब इस किस्म के बिल्स लेकर आते हैं तो उसके बिल्स के जब आप शुरू में लेकर जाते हैं तो उस वक्त तो मशावरत होती है, बड़े इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, वो आप मशावरत से करें। ये बुलडोज करके पास कराने की कोशिश करते हैं, अब भी यही कोशिश करेंगे, लेकिन इसका रिएक्शन होगा।
लाजमी तौर पर होगा। ठीक है, अपोजिशन से बाबर अवान साहब अगर बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है, अपोजिशन से अपोजिशन को एतमाद में लेकर बातचीत करें। इधर तो ये अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेते, वो बेचारे रोना रो रहे हैं ईवीएम के ऊपर, तो अपोजिशन को तो इन्होंने आज तक दिखाया ही नहीं। लेकिन आपको याद होगा यही बाबर अवान साहब जब इन्होंने 19 बिल मंजूर कराए थे बिलडोज करके, तो जो तहरीक एतमाद वापस ली गई थी अपोजिशन की जानब से सूरी के खिलाफ, तो इन्होंने यकीन दहानी कराई थी स्पीकर ने कि भाई 29 बिल हम दोबारा लाएंगे, आपके साथ मुशावरत करेंगे, आप तहरीक एतमाद वापस ले लें। यही सौदा हुआ था ना, तय हुआ था। तय करके उसके बाद बाबर अवान साहब ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई हम तो कोई बिल वापस नहीं लेंगे। उन बिल्स के ऊपर ये हुआ था कि एक कमेटी बन गई थी, पार्लिमानी कमेटी को इसके ऊपर गौर खोज करेगी। अल्लाह के फजल करम से वो गौर खोज नहीं हुआ, वो बिल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मतलब वही ना, तो ये वादा मुकर्रर करते हैं तो और मुकर्रर पूरा नहीं करते। यही तो बात है। तो अपोजिशन किस मुंह से इन पर एतबार करे? नहीं करते ना, वो उनको करना भी नहीं चाहिए। क्यों करेंगे? तो अपोजिशन भी फिर हमारे हाथों से रुसवाई होगी। फिर तो इलेक्शन हम तो तनकीद करेंगे कि उन्हीं के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है जी, तो फिर हमारा एक ही थाली के चट्टे बट्टे साहब हमारे रेडार का रुख अपोजिशन की तरफ। बिल्कुल होगा। बिल्कुल देखिए आप, और अपोजिशन के साथ एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इन्होंने हाथ किया है। वो कह रहे हैं बस 2-4 लोगों की अक्सरियत है, उसके नाम पे हम सब कुछ कर लेंगे। अपोजिशन थोड़ा सा अपने जो है ना वो सा डाले अपने अंदर, अपने लोगों को वहाँ पे कम से कम। मैं तो कहूँगा कि जो पीपल्स पार्टी, ANP, सारी जमातें, नून लीग, ये सब पे सब ये असल में अपोजिशन आपस में भी तो सही। वही तो कह रहा हूँ ना, चलो जो प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट का, उसके अंदर तो मुत्तहद हो जाएं। हाँ वही ना, उसके अंदर मुत्तहद हो जाएं, अंदर उसमें भी एक दूसरे को डंडी मार रहे होते हैं। देखिए साईं, वोट के जरिए शिकस्त देंगे बड़ा अच्छा होगा। आपने आपने सिर्फ बंदे पूरे करने ना, आपके बंदे पूरे हो जाएंगे। आप तो गवर्नमेंट को तो कोरम पूरा करना मसला हुआ है। अभी चौथा पार्लिमानी साल शुरू हो गया, आप देखे जब भी एक दिन भी हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकी, नहीं कर सकी 86 बंदे नहीं पूरे कर सकी। 178 आपको 178 अरकान की हमायत हासिल है, आप 86 बंदे नहीं ला सके। तो अपोजिशन अगर अपने बंदे पूरे कर ले, 156-157 के करीब इनका स्ट्रेंथ है, तो भाई तुम 100 ही पूरे कर लो, 86 से तो ज्यादा होंगे ना, तो इनको आप लेजिस्लेशन रोक सकते हो। लेकिन वही है, वो भी इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ये जो फवाद चौधरी और आजम सवाती के खिलाफ नोटिस हैं, उन पे तो कार्रवाई करेगा आपको लग रहा है, और इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन को पता है कि ये झूठे भी हैं, ये झूठ बोल के चले जाते हैं और ये सीरियस नहीं है, जो वो तो इलेक्शन कमीशन को भी एहसास होगा। अपने साख बचानी है, अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करना है, तो इलेक्शन कमीशन को इन दोनों वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनको चाहे जुर्माना करें, 3 दिन के लिए मुअत्तल करें, 3 घंटे के लिए मुअत्तल करें, 3 मिनट के लिए मुअत्तल करें, इनको मुअत्तल करें बिल्कुल। ये अदरवाइज ये सौदेबाजी समझी जाएगी, ऐसी ही सौदेबाजी सजा में शुमार होगी ना, मुअत्तली सजा में शुमार होगी तो ना। सजा याफ्ता तो सर नायल हो जाता है। तो चलो नायल फिर हो जाए तो फिर हो जाए, सजा तो 1 सेकंड की भी हो। मैं तो कहता हूँ कि फिर होता है तो हो जाए। हाँ। सही बात है ना। अभी ये तो ना करें इलेक्शन कमीशन। नून लीग के बंदे अगर हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के होता सकते हैं। जो भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मैच में हुआ कि मैच फिक्स था, ये बातें हो रही, तो ये इलेक्शन कमीशन मैच फिक्स ना करे हुकूमती वज़रा के साथ। चीफ साहब को पैगाम देना, चीफ साहब राजा साहब आप राजा हैं, और आप मुझे पता चला है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, और फिर राजा भी हैं। तो ये 3 आपके सर पे जो सरखेल हैं, ये जो बड़े बड़े खिताबात हैं, इसका लिहाज कीजिएगा। हम लोग आपके पीछे हैं, मुझे पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी आपके पीछे, इदारे आपके पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस इलेक्शन कमीशन को मजबूत देखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं, खुद मुख्तार करना चाहते हैं। झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी देखिए ना, हुकूमत का और अपोजिशन का मामला, वो 2 जो इलेक्शन कमीशन के अरकान आने थे पंजाब से, और वो अभी नहीं आया अभी तक। वो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है शीरी मजारी की सरबराही में। उसका इजलास होना था, नहीं होने दिया गया। कौन नहीं करता भाई? ये हुकूमत झुकना सीखे, और इस मामले पे हुकूमत जो है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह से सीखे। खुदा की कसम, जब वो अपोजिशन लीडर था या वो जब चीफ व्हिप था, तो वो चला जाता था अपोजिशन के पास, उनको साथ लेकर लेजिस्लेशन करता रहा। एक साल में उसने 105 भी बिल पास करवाए हैं।
अपोजिशन को साथ लेकर करवाए हैं। और चौधरी निसार जैसे बंदे को वो राजी करके आ जाते यार थे। देखो ना, ये होता है, ये होती है बात। उसने कोई पार्लियामेंट अपने सर पे तो नहीं उठा ली, वो पार्लियामेंट अपने घर तो नहीं ले गया, बाबा उल्टा- पार्लियामेंट है। हाँ, बल्कि उल्टा उसको इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बात करने पर जेलों की सजा काटनी पड़ी। हाँ। ये 2-2.5 साल जो 2-2.5 जेल में वो साल। रहा, तो वो इसी वजह से खान साहब नाराज थे ना कि ये वाहद आदमी था जब उठा था, जब धरना हुआ था। फिर हमारा तो उठा था। इख्तलाफ हो जाएगा। खान साहब नहीं, एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज थी 2014 का धरना फेल कराने के चक्कर में। चलो ठीक है। चलें इसमें चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।